Okay, class. So I'm gonna start it. So would you please tell me that in last class what we completed? What did we complete? Anyone in last class? What we completed? We have completed. I think that series RLC circuit. Okay. On your screen, you can see this is source free parallel RLC circuit. क्या हमने कंप्लीट कर लिया था क्या? अरे कोई तो बोलो. सर सीरीज वाला करा था बस ये वाला नहीं। सीरीज ये वाला नहीं करा. ठीक है. सो ओके नाउ गॉट द थिंग. इससे ऊपर के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे. मैंने ये पीडीएफ आपको शेयर नहीं करी बिकॉज इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स थे. ओके नाउ टुडे वी वुड हैव 3 topics. First one is the source free RLC circuit. Very similar one. Where would be the difference? I will locate only those things. I'm not gonna complete one by one. Each step here because the difference would be here. I will focus there. So here, the source-free parallel RLC circuit. This is your first topic, and then we would have 2 topics more. These are step response, step response of series RLC circuit, and then we would have a step response of parallel RLC circuit. So I'm gonna start it, and the circuit which I will tell you to draw, you need to draw it because we will not make it up and down the slide. Okay, so this is parallel RLC circuit. One resistance, one inductor, one capacitance. Okay, so I note this is your initial stage currents. Applications of this parallel RLC circuits are filter design. For getting some filter design, we do it. These are some initial values I0 and V0. These are some initial values. So now, if we just calculate all are parallel, so voltage would be the same. आप फर्क यहाँ समझते हुए चलना. जो मैं फर्क है वो ही आपको नोट करवाऊंगा. मैं यहाँ पे एक एक चीज नहीं बताऊंगा बिकॉज बिल्कुल सिमिलर सी चीजें चलेगी. जब हम सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करते थे तो वहां पर हमारे पास करंट सेम होता था और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सेम है. सो बोथ केसेस जो डिफरेंस है वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको. वहां पे हमने केवीएल लिया था, यहाँ पे हम केसीएल ले रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे हमने वही इक्वेशन निकाली है V बाई आर. अगर हमने केसीएल के तो करंट की इक्वेशन निकाली है I इक्वल टू V बाई आर. ये भी आपकी करंट की इक्वेशन, ये भी आपकी करंट की इक्वेशन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में. ये आपका अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आती है. अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आती है. और मैंने आपको सिखा चुका था अगर सिंगल डेरिवेटिव है तो s लगा दो और डबल डेरिवेटिव है तो s स्क्वायर लगा दो. क्लियरली आपके पास जो इक्वेशन आएगी पैरेलल आरएलसी सर्किट की तो वो आएगी आपके पास एस स्क्वायर प्लस 1/RC डॉट एस प्लस 1/LC. You can compare this equation with the series one. You can compare this equation with the series one that you can get it that how much difference is there. Again आज की क्लास में ध्यान रखना मैं थोड़ा सा स्पीड में भी रहूंगा बिकॉज ये सब चीजें मैं आपको एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ सीरीज सर्किट के अंदर. तो दैट्स मैं आपको इस सारी की सारी चीजों now the second we will calculate the roots. So roots are here. So this is alpha and alpha is your frequency. Which frequency? That is your Nepper frequency, and omega is your resonant frequency. Both frequencies are here, but the expressions are that time 1/RC and here 1/2RC and here 1/√LC. The difference is here. Difference is here. Again noting it down. Difference is here 1/2RC. Clear or not? Should I move? क्लास आगे चलूं मैं या नहीं? नहीं आ रहा समझ तो मुझे बताओ. वापस मैं एक बार वापस कोशिश कर सकता हूँ लेकिन अगर आ रहा है तो फिर मैं आगे चलूंगा. बताओ.
Yes or no? 30 students are here only. आ गया सर. जिसको नहीं आया वो भी मैसेज कर सकता है यार. जिसको नहीं आया. अच्छा रजनीश, प्रॉब्लम है या नहीं है? नो. ओके ओके ओके. ठीक है ओके, आप टेक्स्ट कर देना, मैं समझ जाऊंगा. Next, when we have calculate the roots, now we would have 4 cases. Overdam cases, we know this. सब कुछ सिमिलर सी चीजें हैं, तो मुझे बार बार में इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ओवरडैम का केस आ रखा है, तो रूट्स मेरे कैसे होंगे? रियल और नेगेटिव होंगे. ओके सर, आपने बताया था. मेरा जो वोल्टेज का रेस्पॉन्स, देखो एक और चीज समझना, जब मैं सीरीज आरएलसी की बात करता था तो वहां पे मैं जो रेस्पॉन्स निकालता था वो निकालता था आईटी, इट मींस करंट रेस्पॉन्स. और करंट रेस्पॉन्स किसका निकालता था मैं? आपके पास इंडक्टर के पास जो जाता था. और यहाँ पे मैं जब पैरेलल की बात करता हूँ तो यहाँ मैं निकालूंगा हमेशा वोल्टेज रेस्पॉन्स. जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना. यहाँ पे मैं हमेशा क्या निकालूंगा? वोल्टेज रेस्पॉन्स. सिमिलरली क्रिटिकल डैम्प केस होगा तो मेरी दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी. दोनों इक्वल हो जाएगी तो मेरे पास वोल्टेज रेस्पॉन्स का फॉर्मूला ये आ जाएगा, जिसमें A1 और A2 मेरे क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं. ठीक है सर, आपने बताया था. A1 की जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे वो आपके इनिशियल से निकालेंगे, और A2 की जो निकालेंगे सर वो उसको डेरिवेटिव कर देते हैं. बिल्कुल कर देते हैं. थर्ड केस मैंने आपको बताया था, तो थर्ड केस होता था अंडर डैम्प्ड वाला. अंडर डैम्प्ड केस होता था तो सर इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स वाले होते थे. बिल्कुल होते थे. तो सर इसकी डेरिवेशन बहुत सारी होती थी. बिल्कुल होती थी. अगर डेरिवेशन ज्यादा होती है तो हमें याद क्या करना है? हमें सिर्फ रूट्स याद करना है कि रूट्स की आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी. जे नहीं है, आइटा. तो ये मेरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती थी और आप ये निकाल चुके हो, 12th में पढ़ के आ चुके हो. मुझे नहीं पता आपके मैथमेटिक्स में आते हैं नहीं आते हैं, ये भी दैट आई डोंट नो. ओके, सो फिर उसके बाद में मैंने ये WD की वैल्यू निकाली. WD मुझे पता है कि W नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होता था. तो कुल मिला के मेरे पास ये इक्वेशन आती है रेस्पॉन्स की अंडर डैम्प्ड के अंदर. दिस इज माय फाइनल इक्वेशन. इफ दिस इज माय फाइनल इक्वेशन देन ओके, अल्फा पता है, टी पता है, कोस पता है, WD पता है, टी पता है, सब कुछ पता है. ये A1 और A2 नहीं पता. तो ये A1 और A2 हमारे कांस्टेंट्स हैं. दीज आर माय कांस्टेंट्स एंड दिस कांस्टेंट हाउ वुड आई कैलकुलेट इट? A1 कैसे कैलकुलेट करूंगा? इनिशियल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज V0. और याद करो, आपको जब मैंने सीरीज आरएलसी पढ़ाया था तो वहां पे A1 की वैल्यू निकालते थे I0 से. सिमिलरली अगर मैं A2 की बात कर रहा हूं तो A2 की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी? इसी के डेरिवेटिव करके. तो ये जो V0 की वैल्यू है वो तो मेरी इससे निकलेगी, और जो dV0 अपन dt की वैल्यू है तो वो मेरी इस वैल्यू से निकलेगी. ये इसी को सॉल्व करके लिखा हुआ है मेरा, और कुछ चेंजेस नहीं कर रखा मैंने. इसी को ही सॉल्व करके लिखा हुआ है मैंने. बहुत कंप्राइज करके चीज लिख दी है कि हाँ इसकी वैल्यू को या इससे निकालनी है, इसकी वैल्यू इससे निकालनी है. क्योंकि अब तुम्हारे को समझना नहीं है, अब तुम्हारे को याद करनी है चीजें. समझना था वो मैं तुमको सीरीज आरएलसी में बहुत टाइम ले लेके समझाया मैंने तुम्हारे को. ओके, तो सर व्हाट वुड द बेसिक फीचर्स ऑफ इट? सो बेसिक फीचर्स वुड बी लाइक आईटी किसके लिए निकालते हैं हम? सीरीज आरएलसी के लिए. और वीटी किसके लिए निकालते हैं हम? पैरेलल आरएलसी के लिए. यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको कुछ समझाया था कि कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या नहीं होता. यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको समझाई है. ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात लेता हूं तो देखो, अब मैं एग्जांपल पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बेसिक वही a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को मैं 10 बार करूंगा, 10 बार टाइम लगाऊंगा, फर्क ही नहीं है. इसलिए इसी चीज को समझा रहा हूं वापस. R, L और C ये आपका बिल्कुल बेसिक चीजें ली है मैंने. बेसिक चीजें ली है तो एक ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, और एक ही न्यूमेरिकल से पूरा समझा रहा हूं आपको. VT निकालना है. VT क्यों निकालना है सर? क्योंकि हमारे पास पैरेलल में है, तो ये VT वोल्टेज का रिस्पांस निकालना है. कब निकालना है सर? जब t ग्रेटर देन 0, मतलब टाइम की वैल्यू 0 से बड़ी हो. ठीक है, अज्यूम क्या करना है? इनिशियल वैल्यू दे रखी है आपको 5 वोल्ट की, और इनिशियल करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 0, और R1 की 3 बार वैल्यू दे रखी है.
1.923, 5 और r की वैल्यू देखिए 6.25. Okay sir, it means that we have 3 cases. Yeah, you have 3 cases and you are going to solve one by one. First, you will check R1 equals to 1.923, then second case 5, then 6.25. In all these resistance value, you would have we would complete all the 3 characteristics like overdamped, underdamped, and critically damped. Okay, sir. Case 1. Case 1 is what? When I have a value of R1 equals to 1.923. I1 equals to 1.923. ओके R1 की वैल्यू ले ली तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, तो रूट्स भी निकाल लोगे. दीज आर द सिंपल थिंग्स. रूट्स भी निकाल लोगे. अगर रूट्स निकाल लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि -2 और -50. ओके, सो अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट. ये सर ओवर डैम्प्ड वाली कंडीशन है. अगर ओवर डैम्प्ड वाली कंडीशन है तो इसका रेस्पॉन्स तो ये होता है. अगर सर इसका रेस्पॉन्स ये होता है, बिल्कुल अभी आपने बताया था. अब इसके बाद में क्या करना है? ये मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे A1 निकालना है, मुझे A2 निकालना है. आई नीड टू कैलकुलेट दिस A1 एंड A2. ओके, A1 निकालूंगा सर. A1 तो मुझे पता है कि इससे निकल सकता है. V0 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू A1 प्लस A2. और A2 कैसे निकलेगा? A2 सर इसकी वैल्यू से निकलेगा. आप कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि सर V0 की वैल्यू 5 कैसे आ गई. देखो, ये V0 की वैल्यू आपके पास इसमें रख के आई है. इसी रेस्पॉन्स के अंदर अगर मैं V0 की वैल्यू रख देता हूं, अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो e की पावर 0 1 और e की पावर 0 1, तो मेरे पास A1 प्लस A2 इक्वल्स टू V0 हुआ. देखो ये V0 इक्वल्स टू A1 मेरे पास यहाँ का यहाँ आ जाएगा और e की पावर 2t. ये तो मेरा कोई काम का ही नहीं है क्योंकि मेरे पास e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 1 हो जाता है और ये e, ठीक है. और ऊपर देखो v की पावर 0 इक्वल्स टू 5 दे रखा था मुझे क्वेश्चन में. v की पावर 0 नहीं, v0 इक्वल्स टू 5. तो ये हो गया मेरे को 5. क्लियर? किसी को यहाँ तक चीजें समझ में नहीं है तो बताओ, और किसको समझ में आई है तो भी मुझे रेस्पॉन्स करो. आई वांट योर रेस्पॉन्स प्लीज. आगे और 35 स्टूडेंट्स हैं और number of girls and number of boys are here. I want a response either in message Yes, or sir. vocal. ठीक है, 2. इसके अलावा 3. सर. स्नेहा का भी आ गया. ओके, दैट्स गुड. अगर ऐसा रेस्पॉन्स में आएगा तो भी ठीक है. ओके राजू, समझ गया. रवि, ओके 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 ओके. द नेक्स्ट इज सर. ओके, आई टोल्ड यू दैट A1 आपके पास आ गया. A1 आपको निकालने के लिए V0 5. ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई. और dV/0 dt तो मैंने अभी आपको ऊपर ही इक्वेशन लिखवाई थी, उसके अकॉर्डिंग आ गई. तो देखो ये इक्वेशंस फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगी. बार बार में लिख के लेना, ये नहीं होंगे चेंज. बस यहाँ वैल्यूज चेंज होगी. V0 पता है आपको, दैट इज द वैल्यू ऑफ 5. R पता है सर, बताया था ना आपने. R बताया था आपने 1.983. और I0 ऊपर क्वेश्चन ने दे रखा था, 0 वैल्यू आ रखी है स्टार्टिंग में. तो सर R की वैल्यू पता है, यस पता है. और C की वैल्यू पता है, यस पता है. तो देखो -260 इज योर आंसर. किसका? dV0/dt का. ओके, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू यहाँ से आ गई, एक वैल्यू यहाँ से आ गई. ओके, मेरे पास 260 आ गई. फिर अब क्या करना है? अब उसी इक्वेशन को वापस डिफरेंशियल करना है. ये जो मेरे पास ये रेस्पॉन्स वाली जो इक्वेशन है ना, रेस्पॉन्स वाली, इसी इक्वेशन को मुझे वापस डिफरेंशिएट करना है. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dV/dt आ गया ना, इसकी वैल्यू 260 लिख दी मैंने और ये बाकी वैल्यूज मेरे पास पता ही है. तो dV/dt कर दी तो इससे इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरी. जब मैंने dV0 0 लिख लिया, देखो ये 0 ये और कुछ नहीं है, ये 0 वाली है. तो यहाँ 0 लिखूंगा तब ये t की वैल्यू 0, ये भी t की वैल्यू 0, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो बाय इक्वेशन नंबर 1 and by equation number 2, if I will solve, I will get some expressions of A1 and A2, and then I will put them again in my response equation. That's all. This is your case 1.
Did you get it? Did you get it? Yes. Okay. ओके सो जिस तरीके से केस 1 किया है सेम टू सेम आप केस 2 करोगे। आर की वैल्यू चेंज कर दी, आर की वैल्यू चेंज कर दी तो देखो मैं आगे चल रहा हूँ डायरेक्ट, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आर की वैल्यू चेंज कर दी तो मेरे पास इस बार रेस्पॉन्स की वैल्यू मेरे पास चेंज है। तो अगर रेस्पॉन्स चेंज है तो देखो उसका डिफरेंशियल होगा, उसका आपको यहाँ पे वी जीरो लिखना पड़ेगा तो आपके पास A1 आ जाएगा। सब सेम फीचर्स करने पड़ेंगे आपके पास, तो मैं बार बार में रिपीट नहीं करूंगा अभी चीजें। सिमिलरली अगर मैं केस 3 की बात करता हूं तो 6.25 आ गया। तो इस वाले केस के अंदर मेरे पास अंडर डैम्ड वाली कंडीशन आ रही है। ओके अगर अंडर डैम्ड वाली कंडीशन है तो सर इसका रेस्पॉन्स कुछ और आएगा। यस मैंने अभी आपको ऊपर बताया था इनकी डेरिवेशन के अंदर कि इनके रेस्पॉन्स की वैल्यूज ही अलग है। तो इसका रेस्पॉन्स आपने अलग बता दिया, बिल्कुल बता दिया। तो रेस्पॉन्स की वैल्यू बता दी तो वी जीरो निकालना बहुत ईजी है क्योंकि टी की वैल्यू जीरो रख दो तो आपके पास कुल मिला के वापस यही आ जाएगी, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0 और e की पावर 0 क्या होती है 1। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ से निकालोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन का डेरिवेशन करके मेरे पास -80 आ गया। तो इसी इक्वेशन को देखो मैंने तरीके से सब चीजें लिखी है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिफरेंशियल। यू कैन सी हियर, you can see here, this is your arrow point. Look at this arrow point, this arrow point. First you did a differential here, then you put a -80 value of this, -80 value किसकी dv by dt की, और t की वैल्यू 0 भी आपने इसी में रख दी। तो सारी तीनों चीजें आपने इसमें रख दी तो मेरे पास टोटल आंसर आ रहा है, वो आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये दोनों आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो मेरे पास ये कुछ मैं ग्राफ बना सकता हूं। अगर आपका पेपर में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ जाता है जिसके अंदर आपके पास ग्राफ भी शो करने के लिए करता है तो आपको मैं यहां तक समझा चुका हूं कि ग्राफ भी बना सकते हो। तीनों आपके पास रेस्पॉन्स की वैल्यूज हैं, तीनों के अंदर टी की वैल्यू 1 रखो, टी की वैल्यू 5 रखो, टी की वैल्यू 1.5 रखो, 0 रखो, जो भी रखना चाहते हो रखो। आपकी कुछ वैल्यूज आएगी और आप यहाँ पॉइंट बनाते जाओ। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया वो लिख दिए हैं। रेड वाला आपका ओवरडैम्प्ड का है, red one is your overdamped, green one is your critically and blue one is your underdamped। मैंने तीनों की क्वेश्चन को लिख दिया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन यहीं पे ओवर होता है, क्या आपको समझ में आया या नहीं? गाइस या मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ चीजों के साथ। आ गया सर। श्योर हो? अगर क्वेश्चन आते तो तुम कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि क्वेश्चन आए और तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाओ, हिला ही नहीं पाओ क्वेश्चन को, मतलब सर बन ही नहीं रहा क्वेश्चन, तो ऐसा मत कर देना। ओके मैं वापस शेयर कर रहा हूँ एक बार। ओके नाउ यू कैन सी अ डिफरेंट क्वेश्चन हियर जिसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करा हुआ है आप लोगों के पास यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवाऊंगा इस चीज को कि कैसे क्या करना था। देखो अब आपके पास सोर्स फ्री था, अब यहाँ पे सोर्स आ गया, ऊपर सोर्स फ्री थे अब यहाँ पे सोर्स आ गया। तो सोर्स आ गया तो टेंशन क्यों लेते हो, स्विच है ना हमारे पास। अगर स्विच है, अगर ये स्विच ओपन है ना या क्लोज है तो आपके पास यहाँ पे चीजें होगी, वरना कुछ चीजें नहीं होंगी आपके पास। आप समझ सकते हो चीजों को, पूरी चीजें कर रखी है मैंने, ये चीजें सब बता चुका हूँ। तो एक बार आपको सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है, नहीं आता तो वापस मुझसे पूछ लेना कि सर क्या हुआ था इसमें। t लेस देन 0 होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को, कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन। ओके vt निकालना है, मतलब रेस्पॉन्स निकालना है t0 के लिए और RLC सर्किट। तो सबसे पहले चेक करना है कि सीरीज RLC है या पैरेलल RLC है। तो आप देख सकते हो ये पैरेलल RLC है।
दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये तीनों पैरेलल में है। ठीक है सर। अब रेस्पॉन्स कब निकलेगा? जब आपके पास t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब t से छोटा रहा हमारे पास, तो हमारे पास सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज है तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो गया और ये ओपन सर्किट हो गया। तो अगर हम इनिशियल की बात करते हैं V0, तो V0 कैसे निकलेगा? ठीक है यार, V0 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? V0 निकालने के लिए हमारे को सिंपल सी चीज है, 40 की हमारे पास वोल्टेज दे रखी है, 50 हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। सॉल्व करोगे आप निकाल सकते हो। वोल्टेज डिवीजन रूल लग रखा है। दिस इज योर वोल्टेज डिवीजन रूल। दिस इज योर वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, नेक्स्ट वन I0 भी निकाल सकते हो। I0 निकाला है V/R से, वोल्टेज 40 और R आपका क्या होगा 30 प्लस 50। सर ये आप कैसे कर रहे हो? अरे यार देखो, मैंने यहाँ सब चीजें मेंशन करी हुई है। इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करा हुआ है और कैपेसिटर को ओपन सर्किट करा हुआ है, तब जाके मैं चीजें कर पा रहा हूँ, वरना नहीं कर सकता था मैं। ठीक है सर, V0 निकाल लिया, I0 निकाल लिया। अब ये dV/0 अपॉन dt भी निकाल लिया। ये फॉर्मूला है मेरा A2 निकालने का। ओके, तो अब मैंने क्या करा कि T0 को मैंने क्या कर दिया, T को 0, अब स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज कर दिया तो मैंने एक चीज लिखी है, 30 ओम इज सेपरेटेड एंड RLC इज सेपरेटेड। चेक करते हैं। अब अगर मैंने जैसे ही स्विच को क्लोज कर दिया, लुक एट दिस स्विच वन, जस्ट क्लोज, जैसे मैंने क्लोज किया तो ये वाला पोर्शन तो अलग हो गया और ये तीनों वाले पोर्शन अलग हो गए मेरे। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन अगर मेरे अलग हो गए तो ये सोर्स फ्री RLC हो गया मेरे पास। सोर्स फ्री RLC हो गया तो अब आगे कहानी ये चलेगी मेरी कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा ब्लर आई है इमेज, लेकिन आप लोगों का काम चल सकता है। मैं बता देता हूँ क्या क्या है ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन, ये इंडिपेंडेंट हो गया आपका। ये सोर्स फ्री RLC सर्किट हो गया, पैरेलल RLC। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास देखते हो तो आपके पास कंडीशंस निकलनी चाहिए। तो आपको पास वही चेक करना पड़ेगा कि अल्फा क्या होगा और ओमेगा नॉट क्या होगा। तो आपको पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब रूट्स निकालोगे तो आपके पास अल्फा निकलेगा और आपके पास ओमेगा नॉट निकलेगा। अल्फा और ओमेगा नॉट निकाल के आप चेक करोगे तो पता चलेगा ये ओवरडैम्प्ड वाली कंडीशन आ गई। अगर ओवरडैम्प्ड वाली कंडीशन आ गई तो आपको ओवरडैम्प्ड वाला रेस्पॉन्स लिखना पड़ेगा। और बाकी तो कहानी अभी मैंने पीछे समझाई है, वो की वही है। दिस इज द सिंपल वन। सो क्वेश्चंस में पता होना चाहिए कि आपके पास ये सीरीज आरएलसी बन रहा है सोर्स फ्री या पैरेलल RLC बन रहा है। So these are the points are these points are here. Clear? आगे चलूं या पूछना है इस चीज में कुछ? इस न्यूमेरिकल्स में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, या आगे चलूं मैं बताऊं? क्लास, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, पूछना चाहते हो पूछ लो अभी भी। नहीं है? कम ऑन, मैसेज तो कर ही सकते हो यार, बोल नहीं सकते हो तो, क्योंकि बैकग्राउंड में दिक्कत रहती है। अब तुमको इतना तो रेस्पॉन्स करना ही पड़ेगा। मैं भी तो कंटिन्यू बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ तो क्या तुम्हारे लिए। गाइस, सब सो रहे हैं क्या? अरे तो रेस्पॉन्स तो दो। या फिर ऐसा रेस्पॉन्स भी हो सकता है कि सर हाँ आप समझा रहे हो, इतना नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हम एक बार PDF अगर हम खुद देखेंगे तो एक बार समझ सकते हैं। या आप लोग चाहते हो कि मैं ये एडिटेड PDF आपको प्रोवाइड करूँ क्या? ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं है इसमें मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर रहा हूँ। नॉर्मल ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर रहा नहीं हूँ, मैं बस टिक मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ चीजों को। हाईलाइट करते हुए तुम यहाँ से समझ सकते हो चीजों को। तो आई एम नॉट डूइंग सच अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर। जो इंटरेस्टिंग थिंग मैं कर सकता हूँ, जिसको मैं बॉक्स बना सकता हूँ, जो कर सकता हूँ वो मैं ऑलरेडी करके रख चुका हूँ PDF में। ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी चेक योर अटेंडेंस, देन वी विल स्टार्ट अ डिफरेंट वन। मैं एक बार तुम्हारा अटेंडेंस ले लूँ।
Base 0, 5, 10. Yeah, Aryan is absent today. Mr. Raghav Saini present, Rahul Meena present, Nagarwal present, Rahul Tak present, Shivran present, Shivrayan present, Rajnish present, Raju present, Rakesh Kumar is absent, Ravi Chaudhary present, Ravi Meena, Rinku Yadav, Rishabh, only Rishabh, these three are absent. Rishabh Sharma present, Rishabh Yadav present, Ritik Singh is absent, Ritika present, Rituraj, Rohit, Ronak. Sorry, Rituraj is absent and Chaurasi is present. Rituraj is absent, Chaurasi are present, Meerwal present, Ronak is absent. जो कुछ मैं अभी तक बता रहा था ना, वो सब कुछ बिल्कुल आपका बेसिक्स था. बेसिक्स फॉर लाइक मैं आपको ग्राउंडिंग सेट कर रहा था कि हमको यहाँ तक पहुंचना था. These are your step response of series RLC सर्किट, जो हमने स्टेप रेस्पॉन्स किया था RL सर्किट में. तो यहाँ पे दो होंगे, एक मैं समझाता हूँ, दूसरे की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप समझ सकते हो. एक को मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको, डिटेल में हम करते हैं. उसके बाद जो पैरेलल RLC होगा उसको मैं आपके पीडीएफ ऐसे कैसे बना के प्रोवाइड कर दूंगा जिससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकें. न्यूमेरिकल इसको समझाऊंगा, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स आपके उसमें होंगे, लेकिन आप लोग अब समझ सकते हो, इतने मैच्योर हो गए कि मैं सेम चीजों को 10 बार रिपीट करने की जगह मैं 2 बार करूं और उसके बाद समझो तुम. ओके, स्टेप रेस्पॉन्स. I've told you that what is the mean of step response. If there is sudden introduction of DC voltage or current source, voltage or current source in a circuit, then there will be some changes in response. Changes in response. This is known as a step response. And if we have a series RLC circuit, then what would happen? So now we are going to look at. We are going to see it. Okay, this is your switch. So before connecting it, it is a normal voltage. If we just connect it, it would become V as UT. You know, this I told you in response, step response in RL circuit. V as UT. So इस चीज का ध्यान रखना. बेसिक रिवाइज भी करवा रहा हूँ मैं तुम्हारे को उन चीजों को. ओके, अगर सीरीज RLC सर्किट है तो सर करना क्या है हमारे को? हमको स्टेप रेस्पॉन्स निकालना है. स्टेप रेस्पॉन्स मतलब सर करंट की वैल्यू हमारे को निकालनी है. देखते हैं भी क्या क्या कर रहे हैं सर. ओके, केवीएल सर निकाल सकते हैं. आई की वैल्यू जो कैपेसिटर में जाएगी तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सर. आई इक्वल टू सीवी डीवी अपॉन डीटी होता है. तो ठीक है, इसकी वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो. इसको रख दिया तो सर मेरे पास ये आ जाएगा. सर यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल चीज कर रहे हो आप, कुछ नया कुछ नहीं आया. तो नया कुछ आएगा भी नहीं. अभी सब कुछ चीजें वही चलेगी जो हमने पुरानी कर रखी है. सिर्फ आपका बेस क्लियर हो चुका है. अब आपको सिर्फ चीज देखनी है. ओके, दिस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन. द कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन फॉर द सीरीज RLC सर्किट नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डीसी सोर्स. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है. ये means characteristic question is affected by the presence of DC source or AC source? No. Okay, so if we are considering the response, so we have two type of response. One is transient response. This is your transient response. This is your steady state response. I am writing it here. This is your transient response. Transient. And this is your steady state. SS means steady state. Okay, again we would have overdamped, critically underdamped. These three types of response we can have. Okay, these are some basic information about transient response and steady state response, जो कोई important नहीं है. ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, वही सिमिलर चीज आएगी. So अब यहाँ से समझना, जो आपका स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है ना, वो तो एक फाइनल रेस्पॉन्स हो गया. वो कभी चेंज नहीं होता है ज्यादा. वो फिक्स वाला हो गया. वो वी इंफिनिटी या फिर वी एस इक्वल हो गया. वो फिक्स होता है.
कैपेसिटर की जो वोल्टेज हो गई ना उसके अक्रॉस हो गया ये V इन्फिनिटी VSS। तो सर चेंज क्या होता है? चेंज होता है हमारा ये transient response. This would be changed according to the values overdamp, critically underdamped. And you know that A1 को हम निकाल लेंगे, A2 को भी हम निकाल लेंगे। A1 को कैसे निकाल लेंगे? V0 से और इसको dV0 by dt से। मतलब इसका डेरिवेशन करेंगे, ये जो वैल्यू निकालेंगे इनिशियल वाली और उसके साथ में उसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। ये वाली चीज तो नॉर्मल है, ये तो बेसिक से लिखे हुए हैं मैंने। लाइक वी कैन डिटरमाइन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम करंट टू द कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टेंस। वी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक अगर कैपेसिटर की वैल्यू वी सी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वी आर इक्वल टू आई आर हो जाएगी और इंडक्टर की वोल्टेज कितनी हो जाएगी? एल डी आई बाई डी टी। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो अगर मैं कंप्लीट रेस्पॉन्स की बात करता हूँ, चाहे तो वो वोल्टेज के रूप में निकालूं या फिर मैं करंट के रूप में निकालूं, तो मेरा कंप्लीट रेस्पॉन्स होता है दैट इज द सम ऑफ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड steady state response, where steady state response is have a fixed value, x infinity is the final value and x is the transient response which would have a variable value. We would calculate it by x0, which is just quite similar to the v0 or i0. Next one, dx0 by dt, which is quite similar to the dv0 upon dt and di0 upon dt. So these was my derivation. Okay, derivation वो थी। तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब हमारे को सिर्फ रेस्पॉन्स निकालना है। क्वेश्चन आपके पास सामने है, VT निकालना है, रेस्पॉन्स IT निकालना है, रेस्पॉन्स T0 कंडीशन निकालना है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। R की 3 वैल्यू है तो सर निकाल सकते हैं, तीनों केस आ रहे हैं हमारे पास। क्रिटिकली आ रहा होगा, ओवरडैम्प्ड आ रहा होगा और अब कौन सा आ रहा होगा हमारे पास? अंडरडैम्प्ड। या 3 केसेस वुड बी हियर। तो फर्स्ट हमारे को क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सीरीज है कि पैरेलल है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये तो रेजिस्टेंस कभी आपका ऑन है कभी नहीं है। तो इट मीन दैट दीज थ्री आर इन योर सीरीज। तो दिस इज योर सीरीज आरएलसी सर्किट। ओके, I0 निकाल लिया, V0 निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? t<0 पे हमने कहा कि इस पे सर्किट क्लोज्ड है। t<0 पे सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज है तो इसका मतलब ये दो कंडीशन हो जाएगी, ये दो कंडीशन हो जाएगी तो I0 निकल जाएगा और V0 निकल जाएगा। अब अगर मैं टाइम को 0 से ऊपर लेता हूं तो मेरा सर्किट ओपन हो जाएगा। अब सर्किट ओपन हो गया ना, तो अब समझ लो ऐसी चीजें, ये सब चीजें तुम, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये वाला पोर्शन ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, आज से करीबन 1 महीने पहले जो क्लास स्टार्ट हुई थी उसमें बता चुका हूँ मैं तुम्हारे को। या कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, तो ये जो मैंने सर्कल किया है ना ऑरेंज कलर के अंदर, ये वाला मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ आपको। आरएल सर्किट तो मतलब सितंबर की स्टार्टिंग में बताया था मैंने, 9 या 8 सितंबर को, ये सबको नॉर्मल चीज। और अब अगर मेरा ये ओपन हो जाता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, या ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो फ्री हो गया। ये फ्री हो गया तो ये क्या हो गया मेरे पास? आरएलसी हो गया, सीरीज हो गया। अब सीरीज आरएलसी हो गया तो अब मैं यहाँ पे सब कुछ निकाल सकता हूँ, सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ मैं, ये भी निकाल सकता हूँ, रूट्स निकाल सकता हूँ, ओवरडैम्प्ड नेचुरल रेस्पॉन्स निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पता चला कि मेरे पास अल्फा और ओमेगा नॉट में ये रिलेशन आ रहा है। तो मुझे पता है कि फाइनल रेस्पॉन्स तो मेरा कैसे निकलेगा, VT इक्वल्स टू VSS प्लस VT। तो VSS तो मुझे पता है फिक्स वैल्यू होती है, वो क्या होगी? जो मेरा आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी, जो मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो मेरी ये वैल्यू हो जाएगी। VT निकालना है, VT की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अब देखो बार बार चीजें वही रिपीट होगी तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। A1 आपको पता है कैसे निकालना है, A2 आपको पता है कैसे निकालना है। घुमा फिरा के A1 की वैल्यू भी यहाँ रख दो, A2 की वैल्यू भी यहाँ रख दो, VSS की वैल्यू भी यहाँ रख दो, आपका आंसर आ गया रेस्पॉन्स। ये आपका केस 1 हुआ।
देखो मैंने एरो तक बना रखे हैं, कैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से क्या जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक बार रीड करने की जरूरत है सब कुछ चीजें। इट विल टेक टाइम, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप मुझसे कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा। ठीक है। अब जैसे ये वोल्टेज का रिस्पॉन्स निकाल दिया मैंने, तो ये वोल्टेज का रिस्पॉन्स निकाला था मैंने, पूरा आ गया मेरे पास कैलकुलेट होकर A1 A2 वैल्यू। तो वैसे के वैसे ही मैं इंडक्टर करंट या कैपेसिटर करंट का भी रिस्पॉन्स निकाल सकता हूँ। वो क्या होता है, IT इक्वल टू C डॉट dV बाई dt। तो मतलब इसका पूरे का मैं डेरिवेशन कर दूं और कैपेसिटर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास IT आ जाएगा। इसका डेरिवेशन कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास आ जाएगा ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी आंसर के रूप में। कर सकते हो। और यहाँ से देख सकते हो अगर I0 की वैल्यू अगर आप रखते हो तो आपके 4 आ रही है, और आपको क्वेश्चन ने 4 एम्पीयर दे रखा है वहां पे ऊपर की तरफ। तो ये टेस्टिंग होती है। दिस इज योर टेस्टिंग, दिस इज टेस्टिंग। हर केस में हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो पहला केस तो मेरा वो था जिसमें मैंने आर की वैल्यू ये ली। अब मैंने आर की वैल्यू 4 ले ली। सेकंड केस जिसमें मैंने आर की वैल्यू 4 ले रखी है। आर की वैल्यू 4 ले रखी है, तो I0 कुछ है और V0 कुछ है। ठीक है, सब कुछ वही चल रहा है, बस यहाँ पे रेस्पॉन्स चेंज हो गया है। अगर रेस्पॉन्स चेंज हो गया है तो उसका डेरिवेशन चेंज हो जाएगा, और A1 और A2 आपको निकालना आता है। अब आप निकाल सकते हो इसको। सेम चीजें 3 बार रिपीट हो रही है। ठीक है। अब ये सब निकाल लोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, आपके पास dV/0 भी आ जाएगा। ये देखो मेरे पास लास्ट में सब कुछ सिंपल सिंपल चलता हुआ A1 A2 कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है ये, लेकिन एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास आया फाइनल रिस्पॉन्स वोल्टेज का, जब मेरे पास सेकंड केस है। सेकंड केस कौन सा होता है मेरा, वो होता है जब अल्फा की वैल्यू इक्वल होती है ओमेगा नॉट पे, मतलब क्रिटिकली डैम्प्ड केस। इसमें मेरे पास ये आ गया। तो ये मेरा वोल्टेज का रेस्पॉन्स है, मुझे करंट का रेस्पॉन्स निकालना है। तो IT इक्वल टू C डॉट dV बाई dt होता है। तो इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास ये आ जाता है। और अगर इसमें I0 की वैल्यू में रखता हूँ तो I0 की मेरे पास 4.8 आ रही है। तो आप क्वेश्चन में रख के देख लेना, वहां पे अगर आप नॉर्मल जो I0 निकालोगे तो 4.8 ही आएगा। सिमिलरली केस 3, R की वैल्यू 1, तो मैं पहले बताता हूँ। ये मतलब केस आपका है कुछ इस तरह के का। इसका मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है। तो आपका टोटल रेस्पॉन्स आपका देखो ये पूरा का पूरा ये रहा, पूरा रेस्पॉन्स dV बाई dt करने के बाद ऊपर चलोगे नीचे आ जाएगा। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर A1 और A2 कैलकुलेट करने के बाद। A1 A2 कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास ये फाइनल आंसर है। और ये फाइनल आंसर है, तो मुझे इसका इंडक्टर करंट निकालना है IT इक्वल टू CV बाई dt। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मुझे डेरिवेशन करना है, इसका मुझे डेरिवेशन करना है, और मेरा आंसर ये आ जाए। और फाइनल मेरा ये
are 40 students are here. You can speak up, yeah. I have turned on my camera. किसी का कुछ नहीं? तो समझ में आ गया। अभी कोई कुछ बोल रहा है लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दिया किसी ने। राधिका रामी यस। रजनीश तुम्हारी तो लाइट चल गई थी, कोई दिक्कत नहीं। और अभी कोई और बोल रहा है। सर्जना आप बोल रहे थे क्या? सर्जना आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस इफ यू आर स्पीकिंग देयर। No. Sarjana, I'm not getting your voice. There is some lagging problem. So you can type here. You can text me. आप मैसेज कर सकते हैं एक बार, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। I don't know. Sarjana, your voice got stuck or you are typing. I'm not getting any information by you. सर समझ आ गया और जो नहीं आया वो खुद हाथ से करेंगे तब आ जाए क्या? यू said well. आपने सही कहा कि जब तक आप हाथ से, क्योंकि अभी तक किसी ने कहा नहीं मुझे कि हाथ से देख लेंगे, क्योंकि तुमको सारे के सारे नोट्स बिल्कुल रेडीमेड मिल रहे हैं इस बार। जब तक हाथ से करके नहीं देखोगे ना तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार एक क्वेश्चन को तुमने हाथ से कर लिया ना पूरा, तुमको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सब लिंक्ड है एक दूसरे से, सब लिंक्ड है। दो टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन है सिर्फ, एक में स्विच दे रखा है और एक में स्विच नहीं दे रखा, बस। ऑलराइट, तो आई थिंक दैट जिन स्टूडेंट्स को बोलना था वो बोल चुके हैं, और को तो मैं 10 बार बोलूंगा तो भी नहीं बोलेंगे, तो अपना व्यूज नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर मैं क्लास को ओवर करूं। ऑलराइट।